Good morning, children. Now let's start our new exercise 14.2. This exercise is based on law of exponent. Now, what is the law of exponent? Some rules are given, so we will check and we will learn it. What is it? If same base and different power, same base, it means both are the a. क्या है यहाँ पे? सेम बेस और मल्टीप्लाई साइन है. So how we will solve this type of the equation? A as it is, जो बेस है सेम, और उनके बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे. अगर यही चीज़ सेम बेस है और डिवाइड है, how we will solve them? A first numerator digit power, then after minus n. Third rule is A m. n पावर के ऊपर पावर है n, so we will do the multiply them. Okay, see this multiply will become addition. multiply में ऐसे ही तो आता है. multiply कैसे हो जाता है? addition. और divide में क्या आता है? this sign आता है, तो वो किसको represent करता है? माइनस को. तो you can easily learn it, but these are the applicable for the same base. Okay, remember always the third one rule. if you can see the power of, again power के ऊपर power है, so what you will do? multiply it, that power only. next 4 a की power अगर 0 है, कोई भी डिजिट आ रही है, so you just write it 1. I will give you the example of this 4 question. You can see here now, then after easily you can understand. Suppose the first question, it is given 3 की power 5 multiply 3 की power 8. How can you solve them? Write first of all 3 and 5 plus 8. So that answer is 3, 8 plus 5, 13. Next question, if it is given 3 power 8 divided by 3 power 5, how can you solve it? Write first 3, now 8 minus 5. So that answer is 3 की power 3. Okay, third question, if it is given 3 की power 5 और बाहर दे रखा 4, so what you will be do? यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइज वाले ऑपरेशन को यूज़ करेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स क्या होगा? 3 की पावर 20. Fourth rule, if it is given 100 की पावर 0, it means आंसर क्या आ जाएगा? 1. Now the next rule, what is it? That is for the different base. अगर different base है तो क्या rules होंगे? Rule number 5. Different base है, like a की power same है, different base power same power. Same power, a की power m into b और power m. How we will write them? a b साथ में लिखा और पावर एक सिमिलर है तो उनको वन टाइम वी विल रिप्रेजेंट दैम. ओके, डिवाइड में भी ऐसे करेंगे. a की पावर m डिवाइडेड विथ b की पावर m. इट मीन्स वी आर टॉकिंग लाइक दैट a. ओके, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? वही सबसे पहले a अपॉन b लिखा और पावर को मर्ज करके एक बना दिया. Okay, so this 6th rule, it's very important for this chapter, so keep it in mind and learn it. And how we will solve? I'm taking these examples, easily you can understand, like 3 into 4. Three into 4 or same power as the one time we will represent power 2. So the answer is 12 power 2. नेक्स्ट अगर डिवाइड में दे रखा होगा 3 की पावर 5 डिवाइडेड विथ 4 की पावर 5. Now let's start our exercise questions. Exercise 14.2, question number 1, using the law of exponent, simplify answer in the exponential form.
एंड हियर वी वांट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे? जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ रहा था. You can see here the base are the same and these are the sign in multiplication. Power are different, so just add them. How can you do? Here you can see I am doing directly the solution. 4 2 plus 3 plus 6, add them, then you will get here 11. Same as B1, A 2 plus 7 plus 8. Solve them. What the answer it is coming? Just write them. 5 7 divided by 3 minus 7 minus 3. So the answer is 5 power 4. Here A power 18. Oh sorry, 17. 2a की पावर 5 और 2a की पावर 6. So बेस क्या है? 2a है, 5 और 6 को ऐड करना है. Now E1, how can you do E? E little different. Here two operation it is given. So first we will solve the bracket. Always you know it very well. So first we will solve the bracket. So what is that question? 3 9 divided by 3 की power 2 multiply by 3 की power 3. So 3 की power 9 as it is, divide 3 की power 2, 3 as it is, 2 plus 3. 3 की power 9 divided by 3 की power 5. It means 3 की power 9 minus 5. So that answer is 3 की power 4. Do like that. These are the all questions. Now easily you can do F1 also, but here the power are same. Difference क्या है? Base है. Different base है तो how we will solve them? F S की power 2 multiply R की power 2 मतलब S into R. How can we solve this type of the question? 3 की power. Question number 2. 3 की पावर 2 4 इंटू 15 की पावर 3. यहाँ पे 15 है. वी कैन ब्रेक 15 वाट एवर द नंबर इट इज़ गिवन, जस्ट ब्रेक दैम एज ए प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर के तरह से अपन को ब्रेक करना है. तो 3 की पावर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 8. क्योंकि यहाँ पे रूल क्या हो रहा है? ए की पावर एम इंटू एन. एम के ऊपर एन है तो यानी एन मल्टीप्लाई हो जाएगा. 15 3 मतलब कितना हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 इंटू 15 को ब्रेक किया और उसके बाहर के लगा दिए, 3 लगा दिया, एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. नाउ 3 की पावर 8 एज इट इज. नाउ हियर वी आर यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. a इंटू बी की पावर अगर सेम होती है तो क्या हो जाएगा? a3 इंटू b3. दैट द रूल वी विल अप्लाई हियर फॉर इन दिस टर्म. सो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3. नाउ डिवाइड लगा रहे, इट मीन्स आई कैन राइट डाउन 5 पावर 3. Now 5 power 3, 5 power 3 easily we can cut them. Multiply में cut कर सकते हैं. Now the answer is remaining 3. 8 plus 3 कितना हो जाएगा? 3 की power 11. So that answer is 3 power 11. So understand now how to do this type of the question. Now here you can solve. If you understand easily you can solve. This question number B कैसे दे रखा है? 3 की power 2, then after 5 पावर के ऊपर पावर है, 7 की पावर 10, 2 की पावर 10. हाउ कैन वी सॉल्व दैम? 3 पावर के ऊपर पावर, इट मीन्स 10 हो गया. यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? डिफरेंट बेसिस है बट द पावर इट शुड सेम. पावर क्या है? सबकी सेम है. तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 इंटू 2 साथ में और पावर एक लगानी है, यानी मर्ज करनी है. एक पावर 3 7 21, 21 2 जा 42. सो दैट आंसर इज 42 पावर 10. Next question number C, how we will do. This is the question C, how we will do this type of the question. I told you already. First as you have to कंपोजिट नंबर जो आ रहे हैं उनको एज ए प्राइम नंबर में ब्रेक करना है. तो 9 आ रहा है. 9 को हाउ कैन यू राइट इट? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एम पावर एज इट इज 3. ए की पावर 7 इंटू 15 मतलब 3 इंटू 5 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2. नाउ फॉर 80 जस्ट डू द प्राइम फैक्टर इन रफ कॉलम. 80 2 40 2 20 2 22. ये कितना हो जाएगा? 10 2 5 5 1. सो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5.
So write here 2 power 4 multiplied by 5 into b की power 5, 3 की power 4 into a की power 5 into b की power 5 की power 3 into b की power 2. Now solve them easily. Now this power will be applicable for them. सबके ऊपर आ जाएगी 1 by 1 करके. ओके पहले सॉरी टर्म को खोला अपन ने. नाउ ए की पावर 7 एज इट इज. अब इनको 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू बी की पावर 5. नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व द लाइक टर्म, जैसे लाइक टर्म को सॉल्व करते थे. लाइक टर्म को कैसे सॉल्व करते थे? सेम बेस अपन को ढूंढना पहले. 1 2 3 ये ज़्यादा सेम बेस. तो 3 प्लस सेम बेस है तो पावर क्या होगी? यहाँ पे ऐड होगी. ओके नाउ द नेक्स्ट वन वेरिएबल की बाद में देखेंगे. नाउ 5 की और टर्म है 5 2 और 1 तो मल्टीप्लाई 5 2 प्लस 1. यहाँ पे इसकी कुछ भी नहीं है तो पावर क्या हो गई? 1 हो गई. ओके ये 5 की पावर भी अपन ने सॉल्व कर ली. ना बच क्या रहा है अब? 2 की पावर 4 देन आफ्टर a की पावर 7 इंटू बी की पावर 5. थ्री की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू बी की पावर 2 इंटू a की पावर 5. Now what the answer it is coming? 3 3 is 9. No sorry 3 3 is 9. 8 3 plus 3 6 7 8. 8 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू a की पावर 7 इंटू b की पावर 15 5. Now we will solve 7 है. Now we will solve them. 5 की पावर 3 से तो 5 की पावर 3 कट हो गया. बच क्या रहा है? 3 की पावर 8 3 की पावर 4. तो 3 से में से 3 की पावर 8 में से 3 की पावर 4 को अपन कम कर सकते हैं कैसे? माइनस साइन लगा के. ओके इनमें हमने माइनस साइन लगा दिया. ना b की पावर 2 और b की पावर 5 में से b की पावर 2 को कम कर सकते हैं कैसे? माइनस करके पावर्स में. a की पावर 7 में से 5 हटा सकते हैं 7 माइनस 5 करके और बच के रहा है 2 की पावर 4. नाउ सॉल्व दैम. क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर b की पावर 3 इंटू a की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4. Now write them together. सो दैट आंसर इज 6 पावर 4. इसको अपन और तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? 6 की पावर 4 a2 b3. मल्टीप्लाई साइन हटा के भी हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ C1. टेक ए स्क्रीनशॉट and do yourself first, then after see where you did the mistake. Now question number D. minus 3 power 5 multiply minus 3 की power 2 divided with minus 3 की power 7. सेम बेस क्या है? -3 मल्टीप्लाई साइन है तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड विथ -3 पावर 7. -3 पावर 7 अगेन क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएंगे. So that answer it is coming 1. Next question E1 5 की पावर 2 डिवाइडेड विथ -5 की पावर 0 इंटू -2 की पावर 0. 5 की पावर 2 एज इट इज डिवाइडेड 0 किसी की भी पावर आती है वो 1 होता है इंटू इसके पर भी 1 हो जाएगा. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1. सो 5 की पावर 2 में 1 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 की पावर 2.
Next, F. This is the question how we will solve them. 9 power 3. First solve the power. 9 पावर 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2. पावर के ऊपर पावर है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे. 7 की पावर 4 एज इट इज़ और 3 की पावर 8 इंटू, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, इंटू 21 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 7. नाउ 9 की पावर कितनी हो जाएगी 6 इंटू 7 की पावर 4, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 प्लस 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 7 एज इट इज़. नाउ वी विल सॉल्व दिस 9 एज ए प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 और उसकी पावर क्या रहेगी 6 इंटू 7 की पावर 4, 3 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 1. कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है पावर. नाउ वी विल सॉल्व दैम इजीली. 3 की पावर क्या लिखेंगे 6 इंटू 3 की पावर 6. नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 9. नाउ आई एम जस्ट डूइंग द सेपरेट ऑफ द विद द लैग टर्म के, जैसे लैग टर्म करते थे ना वैसे जिसकी बेस सेम है उनको अलग करते जा रहे हैं. और मल्टीप्लाई साइन है तो एज इट इज़ 7 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 1 कर सकते हैं इस तरीके से. तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस 6 और नीचे 3 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 4 में से एक 7 गया तो कितना बचेगा 7 की पावर 3. सो 6 प्लस 6 12 इंटू 7 की पावर 3. सो 12 में से 9 गया कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3. सो दैट आंसर इज 21 पावर सेम. सो दैट आंसर इज 3. नाउ हाउ यू विल डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. 2 माइनस 3 कैसे करेंगे इसको. 2 में से माइनस 3 किया तो माइनस का एक्स की पावर -1 आएगा और इसी तरह से वाई की पावर -1 आएगा. हियर आई एम डूइंग द डायरेक्टली 2 में से -3 करना है क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में क्या है न्यूमिनेटर में 2 है. ओके दैट्स वाई एंड G1 क्वेश्चन में एंड मल्टीप्लाई विद, सॉरी मल्टीप्लाई सही नहीं आएगा यहाँ पे. और y की पावर में से 2 माइनस 3 किया तो क्या आ जाएगा x की पावर -1 इंटू वाई की पावर भी क्या हो जाएगा -1. सो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई. क्यों मैंने ऐसे लिखा. रिमेंबर वन मोर रूल. ए की पावर अगर -1 होगा तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन ए. वन मोर रूल इट इज़, सो रिमेंबर इट. अगर इफ़ यू कैन सी द नेगेटिव पावर जस्ट नेगेटिव पावर इंडिकेट लाइक दैट 1 अपॉन ए. तो एक्स की पावर -1 इट मीन्स 1 अपॉन एक्स. सो दैट आंसर इज 1 अपॉन एक्स. यहाँ पे x की पावर 2 था, यहाँ पे x की पावर 3 था तो दैट्स वाई 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पे भी 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है. Do tell only. I'm now H and J. Do yourself. I told you how can you do it. Try it yourself. H and J do it. And in this question ये तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है. बहुत easy है. -1 की पावर 68 and -1 की पावर 26. पावर क्या है यहाँ पे सब इवन में है. सो दैट आंसर इज 1. इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा. बट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना. 68 प्लस 26. यहाँ आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है. 68 प्लस 26 सॉल्व करके आंसर लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कंपेयर द फॉलोइंग. 10 की पावर जो 0 एंड हियर भी 10 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू भी 1 इसकी वैल्यू भी 1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल साइन आ जाएगा. 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5. यहाँ पे 5 की पावर 3 प्लस 3 6 तो कौन का बड़ा होगा ये बड़ा होगा. 0 या 1 की पावर 0 तो इट मीन्स आंसर 1 ही आएगा. कौन बड़ा होगा -1 की पावर 0. 3 की पावर 5 -2 यानी 3 की पावर 3 हो गया. 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2. माइनस में लेकिन माइनस में आ रहा है और इधर ग्रेटर 3 की पावर 3 तो तुमको पता है कौन बड़ा होगा 3 की पावर 3. इट शुड बी ग्रेटर. So do till 3 questions. 4 it's a different type of that. First you have to learn how to solve these are the questions and then after I'm telling to you in the next video question number 4 solution. Thank you.